Hello students. So today we are going to start with our second lecture on the topic of electrochemistry. Yesterday we finished our first lecture at measurement of resistance and hence of course the conductance of a solution. Now before I proceed how to measure the conductance of an electrolytic solution, what is the difference between two type of conductors is, these are all solid conductors, so we can make connections very easily with the help of screws. But when we will be using electrolytic solution, this facility is not available to us over there. So before going there, I would like to tell you two things. That is about the units of conductance and the conductivity. We define our conductance G as equal to 1 upon R. We substituted the value for R. R हमने कहा था R is equal to rho into L by A. We substitute this value for R, then it will become 1 upon rho into L into A. Here this is your kappa into A by L, or we can say kappa is equal to G into L by A. So this is the conductivity for specific conductance. So if we go by the units, so G is equal to 1 upon R, and we know that the units of R are ohms. So 1 upon ohm, or you can say ohm inverse. Ohm inverse, or in SI units it is called Siemens. Symbol is capital S in SI units. If we go by the units of this specific conductivity, units of this are Siemens or ohm inverse. It is meter upon meter square. So it is Siemens meter minus 1. Although this unit is a bigger unit, sometimes its subunit centimeter minus is also used. We also use the unit for conductivity as Siemens centimeter minus 1. So that is because of the certain technical issues related with the measurements. So these are the units of conductance and the conductivity. Now let us come to the how will we compare the two electrolytic conductors, for which we will be requiring resistance of those conductors, and those conductors, resistance of those conductors will be of course measured with the help of Wheatstone bridge. Not of course Wheatstone bridge, an instrument is there which is called meter bridge. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है which works on the principle of Wheatstone bridge. फिजिक्स में आप इससे प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो इससे मेजर करते हैं. It works on the principle of Wheatstone bridge. So what are the difficulties we will face when we will be using electrolytic conductors? In case of electrolytic conductors, the first difficulty which we will experience for measurement is no connections are possible like solid conductors. जैसे हमारे पास सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर हम कनेक्शंस बना सकते थे, उस टाइप के कनेक्शंस सॉल्यूशंस के अंदर बनाना संभव नहीं है. दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्टी. Second problem will be, if we use direct current which we use there,
DC causes electrolysis which result into increase in resistance, which result into increase in रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। तो अगर हम करंट डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो डायरेक्ट करंट से इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन ए पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, we will be discussing that shortly. So these are the two problems. Now how we will overcome these problems? This problem of making connection can be overcome by using a device called conductivity cell. इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कंडक्टिविटी सेल को यूज करके। कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है, कई तरह की कंस्ट्रक्शन है कंडक्टिविटी सेल की। आई एम ड्राइंग द सिंपलेस्ट वन, सबसे आसान जो कंडक्टिविटी सेल होता है दैट आई एम ड्राइंग। इन दिस देयर इज ए ग्लास केसिंग, ग्लास की केसिंग है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड फ्यूज है, यहां पे भी ग्लास की ट्यूबिंग है बाहर की तरफ, उसके अंदर ये दो सील्ड हैं, और यहां पे एट द एंड ऑफ दीज there are two electrodes of platinum, that is not pure platinum, it is platinized platinum। platinized platinum का मतलब क्या है कि हम प्लेटिनम को इलेक्ट्रोकेमिकली कोट कर देते हैं with black platinum, और that is finally divided platinum, उससे हम कर देते हैं platinized platinum के ये electrodes हैं। Now as discussed earlier, हमें length of conductor कितनी चाहिए, that is unit length, that is in terms of SI unit it should be meter, but meter will become too large, so here generally we use centimeter, we take length, unit length as 1 centimeter। So to make the length of conductor 1 centimeter, what is being done is these two electrodes, they are placed 1 centimeter apart. These two electrodes, they are 1 centimeter apart from each other, and to make up the area 1 centimeter square, these two electrodes are having its area of 1 centimeter, that is they have a length of 1 centimeter and the breadth 1 centimeter, so they have a area 1 centimeter square। So the conditions of length and area of cross section will be met with these two things। So now we can make connections through these two conductors, and the solution between these two electrode will be the conductor, electrolytic conductor of 1 centimeter length and 1 centimeter square area। So this first problem can be overcome. This is the simplest conductivity cell. There are so many designs of electrolytic conductivity cell। Secondly, we will be using for all measurements the water which has very low conductance, pure water, that is called conductivity water, which has a very small conductance, approx 3.5 into 10 to the power minus 5, so that is almost negligible conductance, so conductivity water will be used for making the solution। So this is the first problem, how we will overcome। Second problem was that if we use direct current, then electrolysis will take place, that will result into decrease in number of ions around the electrodes। इलेक्ट्रोड के आसपास जहां पे आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रोड पे आयंस डिस्चार्ज होंगे,
आयंस डिस्चार्ज होंगे तो वहां पे आयंस की संख्या कम होगी, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। दीज आर कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट्स। उस पोलराइजेशन इफेक्ट को कम करने के लिए ही हम प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम का यूज करते हैं, प्लेटिनम कोटेड विद ब्लैक प्लेटिनम। सो दैट प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग एन अल्टरनेटिंग करंट, having frequency in the audible range 550 to 5000 hertz, that is cycle per second. This frequency का अल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट यूज करने से there will be no electrolysis because electron will that your ions will not be able to reach the electrode, so there will be no electrolysis, so there will be no polarization effect also. But now when you use an alternating current, then another problem creep up, एक नई समस्या पैदा हो जाती है। जो हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया था नल पॉइंट निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज में, now this galvanometer is no longer able to detect the null point. अब ये हमारा गैल्वेनोमीटर किसी काम का नहीं है, ये नल पॉइंट नहीं निकाल सकता, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में एज यू नो अल्टरनेटिंग करंट जो है दैट मूव्स इन द साइन वेव, तो आपके इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी बदलती रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपकी जो निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट विल फ्लक्चुएट अराउंड अबाउट द जीरो, so you will not be in a position to detect the null point. So this problem can be overcome by using earphone instead of galvanometer. galvanometer की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ईयरफोन का यूज करेंगे। और ईयरफोन का जब यूज करेंगे then how will we know that we have reached the null point? जब आपको ईयरफोन में मिनिमम साउंड सुनाई दे, दैट विल बी द नल पॉइंट व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट, व्हाइल मेजरिंग द रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस मेजर करें आप मीटर ब्रिज से, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जब आपको ईयरफोन में मिनिमम साउंड सुनाई देगी तो आपका नल पॉइंट आ जाएगा। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट to measure the resistance, तो इसमें हमने अभी लिखा था that kappa is equal to G into L by A, that is specific conductance is equal to conductance into length upon area। अब क्या होता है जब कंडक्टिविटी सेल होती है उसके अंदर जो ये लेंथ और एरिया मेजर करना होता है ये इनकन्वीनियंट सा रहता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सेल है, हम एक ही सेल यूज कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने अभी सेल बनाया, मान लीजिए हमारे पास ये हमारी कंडक्टिविटी सेल है, तो अगर हम ये सेल यूज कर रहे हैं, यही सेल यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए बार बार, तो इसका L by A क्या होगा, कांस्टेंट। इसका L by क्या होगा, L by A will be constant, so we call this as a constant for a particular cell, constant for a particular cell, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। अब किसी भी कंडक्टिविटी सेल में ये लेंथ मेजर करना, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो वियर्स एंड टीयर्स भी होंगे, इलेक्ट्रोड्स हो सकता है थोड़े नजदीक आ जाए, पुश होके, झटके लग के, हाथ लग के दूर चले जाए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर ईच एंड एवरी टाइम लेंथ एंड एरिया। तो जो ये सेल कांस्टेंट है ये हम पहले निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सॉल्यूशंस whose conductivity values are known to us। उनकी कंडक्टिविटी वैल्यूज हमें पता है, और वो सॉल्यूशन हम कौन कौन से सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, 1 मोलर KCl यूज कर सकते हैं, 0.1 मोलर KCl यूज कर सकते हैं, 0.01 मोलर KCl यूज कर सकते हैं। ये जो सॉल्यूशंस हैं इन सॉल्यूशंस की हमें
कंडक्टिविटी पता है, इनकी कंडक्टिविटी क्या है हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, जिस किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट निकालना है उससे हम उसकी कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, कंडक्टेंस मेजर करेंगे। कंडक्टिविटी हमें पता है, सो वी कैन बी इन ए पोजीशन टू कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी कंडक्टेंस मेजरमेंट करनी है तो हम सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकालेंगे बाय मेजरिंग द कंडक्टेंस ऑफ दीज सॉल्यूशंस एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग ओवर द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ये तो बात हो गई कि हम कैसे मेजर करेंगे। अब सॉलिड कंडक्टर्स में तो हमने डिफाइन कर दी थी डिफरेंट टर्म्स को, लाइक योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सॉलिड कंडक्टर्स में हमने क्या कहा था, कंडक्टेंस 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर हो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, ठीक है। समटाइम वी आल्सो यूज in case of solution we will be making use, generally we will be making use of 1 centimeter and 1 centimeter square। तो सॉल्यूशंस में हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमारी जो कंडक्टेंस है और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस दैट इज G एंड कंडक्टिविटी दैट इज K, इनको वहां हम कैसे डिफाइन करते हैं। कंडक्टिविटी को तो हम डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयंस हैं उन सब की कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी, ऑफ कोर्स अंडर ए सेट ऑफ कंडीशंस। नाउ व्हाई वी हैव टेकन द 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम एसआई यूनिट्स में बात करें तो इट विल बी 1 मेट्रिकल, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने माना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनको 1 सेंटीमीटर दूर रखा था एक दूसरे से। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर हम वॉल्यूम निकालें तो ये हमारा एक क्यूब बनेगा हैविंग साइड 1 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन में आयंस है उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। सो this volume is 1 centimeter cube, so we have defined the conductivity as the conductance due to all the ions present in 1 centimeter cube of the solution. And what is the conductance? Conductance is of course the conductance of all the ions present in a solution. We are not talking about the amounts over here, हम बाद में बात करेंगे अमाउंट्स के बारे में। अब हमने कल जब कंपेयर किया था 2 मेटालिक कंडक्टर्स को, तो हमने ये कहा था कि उनकी हम दोनों कंडक्टर्स की लेंथ बराबर काटेंगे, हम उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा लेंगे। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें तो हम 2 इलेक्ट्रोड्स को तो 1 सेंटीमीटर दूर रख देंगे, हम दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। लेकिन जस्ट थिंक ऑफ ए सिचुएशन कि मैं NaCl को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, सपोज कैल्शियम क्लोराइड के साथ। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहूं, मैंने लेंथ ऑफ कंडक्टर फिक्स कर दी बाय फिक्सिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स कर दिया बाय टेकिंग द एरिया ऑफ दैट इलेक्ट्रोड एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसका 1 मोल कितने आयन देगा? अगर मैं इसका 1 मोल लूं तो ये पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो, तो आपके, मैं कंप्लीट डिसोसिएशन मान रहा हूं, तो 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल आपका ये बनेगा। और जब आपका 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और 2 मोल क्लोराइड आयन बनेंगे।
सो आर दे इक्विवेलेंट? लेकिन हम अपनी तरफ से इक्विवेलेंट कर देते हैं। हम अपनी तरफ से इक्विवेलेंट कैसे कर देते हैं? हम ये कहते हैं हमने अपनी तरफ से 1 मोल डाल दिया, नाउ इट इज द नेचर ऑफ सोल्यूट, व्हाट इट इज डूइंग, व्हाट आर द नंबर ऑफ आयंस इट इज गिविंग। तो हम तीसरी कंडीशन क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से दोनों का अमाउंट बराबर रखेंगे। और अब हमने किसी सॉल्यूशन में क्या अमाउंट डाला उसके हिसाब से दो टर्म्स हम और डिफाइन करते हैं। एक को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, वन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा m। And how we define the molar conductance of an electrolyte? It is defined as conductance due to all the ions present in solution of an electrolyte when 1 mole of electrolyte is present in solution, when 1 mole of electrolyte is present in solution। जब हमने सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, here remember I am not talking about the volume of solution in which this 1 mole is present। मैंने कहीं वॉल्यूम का जिक्र नहीं किया है कि ये 1 मोल कितने वॉल्यूम में होना चाहिए। आपके सॉल्यूशन के अंदर अगर 1 मोल है, चाहे वो 1 लीटर में है, चाहे वो 10 मिलीलीटर में है, चाहे वो 1000 लीटर में है, तो वो सारे उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस ही कहेंगे। कंडीशन इज कि सॉल्यूशन शुड कंटेन 1 मोल। हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का डिसॉल्व होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लैम्डा m। द सेकंड इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सेकंड इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको हम लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। सारी डेफिनेशन वही है, डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन, यहां पे 1 मोल की जगह हम क्या कर देंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंस्टेड ऑफ दिस 1 मोल। सारी डेफिनेशन सेम है, बिल्कुल सेम है। इस 1 मोल को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से। तो हमारी जो कंडक्टेंस हो जाएगी सॉल्यूशन की, दैट विल बी कॉल्ड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन। सो दीज टू आर द कंडक्टेंस। ये हमने क्यों डिफाइन की? अब हमने किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का अगर कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, आइदर वी मेजर द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेजर करेंगे इट विल बी मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि इन दैट कंडीशन अगर आपको ध्यान हो, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मोल दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट दे आर रिलेटेड बाय द फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इनटू मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर बताया था हमने, n इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मोल रिलेटेड है, तो जब हम इक्विवेलेंट लेंगे तो क्योंकि वहां पे वैलेंसी या बेसिसिटी वगैरह आएगी, तो आपकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दे विल आल्सो बिकम सेम। सो दिस इज द 2 terms which we will be using. Now we will be making the 2 electrolytic solution equivalent from our side. After that it is their nature or it is their behavior, as in case of metallic conductor, which one is a better conductor. Now before I go further to discuss about the variation of these conductances with dilution or with concentration, you can say in other words,
first of all we will be driving relation between specific conductance, that is the conductivity, and molar conductance, specific conductivity as well as specific conductance or conductivity and equivalent conductance. So first let us discuss relation between molar conductance and the conductivity. So the first thing which we are going to discuss is, it is a logical derivation. So relation between molar conductance, that is lambda m, and conductivity, that is kappa. इनके बीच में हमने रिलेशन निकालना है. हाउ वी विल ड्राइव दिस रिलेशन? इट इज ए लॉजिकल डेरिवेशन. Let us suppose that we are having 1 centimeter cube of solution. हमारे पास 1 centimeter cube solution है. That is 1 centimeter cube means 1 ml. हमारे पास 1 centimeter cube solution है. Let us suppose we are having 1 centimeter cube of solution and it contains, let we have 1 centimeter cube of solution having 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte dissolved in it. 1 mole of electrolyte dissolved in it. इसमें हमने 1 mole electrolyte डाल दिया. Now if we go by the definitions, अब अगर हम definitions को देखें, हमारी conductivity क्या थी? Conductivity we defined as the conductance due to all the ions present in 1 centimeter cube of solution. So we are having solution 1 centimeter cube. इसका मतलब इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है. सो देयरफॉर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कापा. स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर कंडक्टेंस आएगी क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं. हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लिया हुआ है तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अब अगर हम जाएं बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या थी? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. हमारा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है सॉल्यूशन में. सो कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज आल्सो द मोलर कंडक्टेंस. क्योंकि इसमें 1 मोल है सॉल्यूशन में तो इसकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस भी बोलेंगे. तो इसकी कंडक्टेंस कापा भी है और इसकी कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस भी है. या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लैम्डा एम कापा, ये दोनों बराबर है क्योंकि एक सॉल्यूशन कंडक्टेंस है. इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. तो ये हमारा हो गया. अब हमने क्या किया, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब या जो 1 मिलीलीटर हमारे पास सॉल्यूशन था, हमने इसमें 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन और मिला दिया, पानी डाल दिया. हमने इसमें क्या डाल दिया? 1 मिलीलीटर पानी डाल दिया. तो हमने अगर इसमें 1 मिलीलीटर पानी और डाल दिया तो अब हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? अब हमारा सॉल्यूशन हो गया, टोटल सॉल्यूशन हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर क्यूब ये और 1 सेंटीमीटर क्यूब ये, 2 सेंटीमीटर क्यूब. डेफिनेशन के हिसाब से 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस कितनी है? कापा. तो इस क्यूब की कंडक्टेंस भी कापा है और इसकी भी कंडक्टेंस कितनी है? कापा. हमारी टोटल कंडक्टेंस कितनी हो गई? कापा प्लस कापा है, दैट इज 2 कापा. ठीक है. तो अब हमारे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या है? लेट ऐड 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू सॉल्यूशन. 1 मिलीलीटर पानी डाल दिया सॉल्यूशन में
देन कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू कापा, हो गई 2 इंटू कापा, क्योंकि हर 1 ml की सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कापा है। अभी भी इस सॉल्यूशन में कितना साल्ट है, हमने साल्ट तो डाला ही नहीं, हमने पानी डाला है। तो पहले हमने क्या डाला हुआ था इसमें, साल्ट 1 मोल। तो इसका मतलब अभी भी इस पूरे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल हैं, 1 मोल। तो इसकी कंडक्टेंस कितनी होगी, लैम्डा n। ठीक है, तो 2 कापा के बराबर होगी और लैम्डा n के बराबर होगी, और ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है। तो कापा इंटू 2। अब मैं अगर इसको 1 मिलीलीटर पानी और मिला दूंगा तब क्या होगा, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 3। अगर मैं 1 मिलीलीटर और डाल दूं तो मैं इस सॉल्यूशन में पानी मिलाता चला जाऊं और इसमें मैं VmL पानी मिला दूं, तो हमारे पास जो ऐसे 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब हैं वो कितने क्यूब बनेंगे, V क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ईच। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के कितने क्यूब बन जाएंगे, V क्यूब। और हर क्यूब की कंडक्टेंस कितनी होगी, कापा। तो टोटल कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, कापा इंटू V। साल्ट हमने अभी भी नहीं डाला है, तो साल्ट अभी भी क्या है हमारा इसमें, 1 मोल। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन अभी भी क्या है, मोलर कंडक्टेंस। सो इट इज लैम्डा n। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस, conductivity and volume of the solution containing 1 mole। अब इस सॉल्यूशन में, इस वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम निकालना हमने, तो अगर हम मोलरिटी की डेफिनेशन लगाएं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, वॉल्यूम की कीमत क्या आएगी, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए वॉल्यूम। तो अगर मिलीलीटर में ले तो हमारा वॉल्यूम कंटेनिंग वन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम कंटेनिंग m mole, where m is the molarity of the solution, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। तो अगर हम इस रिलेशन को यहां पे पुट कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा विल बी इक्वल टू कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये एक और रिलेशन है, अगर हमें सॉल्यूशन की मोलरिटी पता हो तो। जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में रिलेशन निकाला लॉजिकल आर्गुमेंट्स के साथ, उसी तरीके से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो रिलेशन भी हमारा यही आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इनटू V। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये मान लेंगे कि 1 मोल की बजाय कितना डिसॉल्व्ड है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड है। ठीक है, तो उस केस में आपका सेम आर्गुमेंट्स के साथ अगर आप चलोगे, यू शुड ट्राई टू ड्राइव इट इटसेल्फ योरसेल्फ। जब हम बिल्कुल सेम आर्गुमेंट्स पे चलेंगे, जैसे हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला, तो हमारा रिलेशन यह आएगा, और ये आ जाएगा हमारा कापा इनटू वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। तो ये हमारे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के दो रिलेशन हैं, कापा इनटू V एंड कापा इनटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। अगर हमें रिलेशन निकालना हो बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट, तो मैं क्या करूं, इस रिलेशन को मैं नंबर 1 मानूं, इसको नंबर 2 मानूं, तो डिवाइड 1/2 कर दूं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं हम,
So it will be kappa into 1000 divided by molarity into kappa into 1000 और ऊपर हमारी क्या चली गई, नॉर्मेलिटी। तो हमारा ये कट गया, ये हमारे पास आ गया नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। और सॉल्यूशन के चैप्टर में मैंने आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन कराया था। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या है, हम जानते हैं दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी, वेयर n इज योर एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी एक्सेट्रा। ये रिलेशन हमने सॉल्यूशन में किया था। अगर हम ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमारी लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगी, n इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी से मोलैरिटी कट गई तो लैम्डा m आ गई हमारी n इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। So this is the relation between molar conductance and equivalent conductance of an electrolyte. So I think this is sufficient for today. You should try to derive that relation of equivalent conductance as I asked you during the lecture, and also sort out some problems based on specific conductance, etc. See you tomorrow. Thank you.